Polio is actually a contagious infection or a disease caused by the polio virus in itself, and causes the immune system to be so much compromised that it cripples you down or leave you in paralysis. And Pakistan, along with Afghanistan, is among the two last countries globally where polio is still endemic. But the current government of Pakistan has taken two initiatives, particularly in the year of 2026. They have launched a nationwide anti-polio campaign, first in February 2026, and now the second one in March or April 2026. Around 45 million were targeted for the vaccinations, not only of the polio itself, but to also supplement with vitamins A to strengthen their immune system. But at the same time, 300,000 children, yes, 300,000 children were still deprived of these anti-polio campaigns. Now, why? It's because that according to the authorities, some of the people were traveling, and on the other hand, some people actually directly refused to inject or to allow to inject those anti-polio injections into their children. More than 22 million children alone in Punjab were vaccinated through this campaign. More than 10 million children got this vaccination in Sindh, and more than 7 million children were vaccinated in Khyber Pakhtunkhwa, and around 2.5 million children in Balochistan received these injections. Around 4,41,000 children received vaccination in Islamabad, and in Azad and Jammu Kashmir, more than 7 lakh children got vaccinated. Only 3 lakh children out of 45 million children, that too for their personal reasons or for some valid reasons like traveling, they were unable to receive this vaccination. But still, authorities are ensuring that the polio workers go door to door and not only propagate the awareness but also execute their entire work. Social media, chai khanas, living rooms, it does not matter where you are in this country right now. So let us hear it straight from them. What do the youth of Karachi expected from this second round of Islamabad talks? And what has Pakistan's role as the world's most critical mediation right now done for this country's standing on the global stage? देखिए, इस्लामाबाद टॉक्स हो रही है और इसका सेकंड राउंड है। सबसे पहले तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इस टॉक के पीछे जो है वजूहात क्या हैं और ये टॉक जो है क्यों हो रही है। ये जो अमेरिका और ईरान के जो आपस के मामला जो ख़राब हुए हैं, ये कोई आज के या कल के नहीं है, ये तकरीबन 48 साल का इनका मामला है। 48 साल का झगड़ा अगर 48 घंटे में ख़त्म होने लग गया तो ये इम्पॉसिबल बात होगी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो फर्स्ट टॉक हुई थी, लोगों ने कहा जी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। मुज़ाकरात बेहद कामयाब हुए। चंद पॉइंट्स रखे गए थे, चंद पॉइंट्स जो है वो उसके ऊपर अमेरिका राज़ी हुआ, चंद पॉइंट्स ऐसे थे जिनके ऊपर ईरान राज़ी हुआ। उन पॉइंट्स पर राज़ी होने के बाद ही वो इस्लामाबाद आए थे, अदरवाइज़ वो इस्लामाबाद आते ही नहीं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कभी एक बंदा जो है वो तुर्की में होता है, दूसरा बंदा सऊदीया में होता है, तीसरा बंदा ईरान में होता है। इसकी वजूहात क्या है? ऐसी वजूहात सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तान की मईशत को कामयाब करने के लिए। देखें, ये बहुत मेरे ख्याल से बहुत अहम चीज़ है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है मौजूदा वक्त में। तो अगर हम देखें तो ये हमारे लिए बाइज़ फ़ख्र की बात है कि हमारे मुल्क में दुनिया का जो सबसे बड़ा मसला वो हमारे मुल्क में सॉल्व हो रहा है। तो हमारी ये बहुत फ़ख्र की बात है। और पहला मुज़ाकरात जो हुआ है वो, अगर इतने पुराने दुश्मन साथ बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं तो ये नहीं कह सकते कि मुज़ाकरात नाकाम हुए, लेकिन ये है कि उनसे बात हो सकती है। अभी दूसरे जो मरहला है उसके अंदर हम पूरी उम्मीद हैं, और पाकिस्तान की जो फ़ारतकारी है, फील्ड मार्शल हैं और वज़ीर आज़म हैं, जिस हिसाब से वो इसको लेके चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कामयाब हो जाएंगे और ये पाकिस्तान के लिए बेहद अहम चीज़ है और पाकिस्तान की सफारतकारी के लिए बहुत मुस्बत चीज़ है। ये जाहिर सी बात है, बीइंग अ पाकिस्तानी प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, हम सबके लिए प्राउड मोमेंट है, क्योंकि हम बीइंग अ पाकिस्तानी और पाकिस्तान को इतना नाम ऊंचा हो रहा है, तो पाकिस्तान ये तो बहुत अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए। और बैनुल अक़वामी तौर पे भी कि हम पाकिस्तान के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान जो है मुज़ाकरात कामयाब करवा रहा है, मुज़ाकरात बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं, पाकिस्तान के लिए तो वैसे भी कोई नुकसान नहीं होगा, मगर ये है कि अगर पाकिस्तान अगर हो जाते तो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा बहुत है। बैनुल अक़वामी तौर पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फ़ायदे फ़वाइद है पाकिस्तान के लिए, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे मामला होंगे। और ये है जैसे कि अभी रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, पाकिस्तान के हक़ में भी जाएंगी वो भी, और बाकी हमारे पड़ोस ममालिक हैं उनसे भी, उनकी तरफ भी काफ़ी अच्छा मैसेज आएगा हमारा।
है।